ठीक है, वेरी केयरफुली, कि हमें पता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है. आपके पास एक बैटरी है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की और इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज कर दिया. ब्रिलियंट. व्हाट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? नाउ लिसन केयरफुली. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज एक्चुअली के ये बैटरी है, मैं आपको ये पढ़ाने लगा हूं. हाउ द बैटरी जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, राइट? हाउ द बैटरी generates electricity. I'm going to teach you this. यानी कि बैटरी किस तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है. What is a battery? तो I'm teaching you a battery. So electrochemical cell is a battery. यानी कि यहां पे क्या होगा, यहां पे the chemical reaction happens first. It causes electrical energy. यानी कि the chemical energy converts into electrical energy. It generates electricity. इसकी एग्जांपल ले लेते हैं. यूपीएस में कार्ड बैटरी लगी होती है, ठीक है. जब वाटर की सप्लाई कट ऑफ होती है तो वही बैटरी आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है. अब वो बैटरी किस तरह आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न नाउ. That what sort of chemical reaction happens in the battery that it causes it actually causes the production of electricity. Okay, so guys, let's start off, everyone. There we go. Put him camera off now. Okay. So in the electrochemical cell, right, the chemical energy will convert into electrical energy. How? See. So there we go. So basically होता क्या है? Electrochemical cell में again we have the anode, again we have the cathode, again they are dipped in a solution called as electrolyte. ठीक है, लेकिन अब ऊपर रादर, क्योंकि ये तो खुद बैटरी है, तो हम इसके ऊपर वोल्ट मीटर लगा देते हैं, जस्ट टू चेक दैट कि हाउ मच वोल्टेज इज बीइंग सप्लाइड. आपने देखा होगा इवन जो आपके AA AAA सेल्स होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है ये 1.5 वोल्ट का सेल है, ये 1 वोल्ट का सेल है, ये 2 वोल्ट का सेल है. तो वोल्टेज लिखी होती है सेल के ऊपर. मैं आपको वो सेल पढ़ाने लगा हूं कि सेल में से how the cell gives the voltage. Now remember, in the electrochemical cell, we have a voltmeter. It is connected to of course, we have like 2 electrodes, right? One electrode is the anode, the other electrode is the cathode. But how will you come to know okay, which one is anode and which one is cathode? Like in the electrolytic cell के अंदर जो electrode attached है with a positive terminal, आपने कहा वो anode है. जो attached negative आपने कहा वो cathode है. लेकिन यहां पे कैसे पता चलेगा कि anode cathode कौन सा है? तो guys remember, in the electrochemical cell what happens is हम एक इलेक्ट्रोड बनाते हैं मोर रिएक्टिव मेटल का, दूसरा इलेक्ट्रोड बनता है लेस रिएक्टिव मेटल का. Remember, the electrode made of more reactive metal is the anode, and the electrode made of less reactive metal is the cathode. लेकिन होना एनोड पे ऑक्सीडेशन ही है और कैथोड पे रिडक्शन ही है. ये बात नहीं भूलनी प्लीज. The electrolyte normally used is dilute sulfuric acid. That's electrolyte which is commonly used. Okay, shall I go on, everyone? सर कैथोड पे आपने H रिडक्शन के लिए लिखा हुआ है. Yes, yes. This you know, आपका H means reduction and this O means oxidation. Gee, guys, shall I move on, everyone? So there we go. Let's take
an electrochemical cell example. Suppose करें कि मैंने यहाँ पे लिया जिंक रॉड और मैंने यहाँ लिया let's say copper और मैंने इसको डिप कर दिया in dilute sulfuric acid. This is zinc and this is copper. आपको पता है कि this is your reactivity series. ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है. यस मलाइका. अब ये जिंक है और ये कॉपर है, तो आई थिंक जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. नाउ सिंस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो देयरफॉर जिंक इज द एनोड एंड कॉपर इज द कैथोड. क्या होगा? तो जो एनोड है उस पे ऑक्सीडेशन होगी, तो मोर रिएक्टिव मेटल will dissolve. So more reactive metal dissolves. I mean oxidizes. तो क्या होता है? Zinc starts giving zinc ions. तो यहाँ पे zinc ion देने शुरू कर देता है. अब जब zinc ion देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल वायर में चले जाते हैं. Electrons go in the electrical wire. एनोड पे ऑक्सीडेशन हो गई. ऑक्सीडेशन. अब यहां कैथोड पे रिडक्शन होनी है. नाउ व्हाट हैपेंस एट द कैथोड? लिसन प्लीज वेरी केयरफुली. Oh yes, sorry Mohudin. Thank you. Now guys, everyone, अब अगर यहां पे ऑक्सीडेशन हो गई है, इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर जा रहा है, तो फिर यहां पर रिडक्शन होनी है, यहां इलेक्ट्रॉन गेन होना है. अब इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? कैटाइन. इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता है? एनाइन या मेटल. इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? तो कैटाइन. अब सॉल्यूशन में कैटाइन्स कौन कौन से हैं? एक तो जिंक आयन है, ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड में एक H पॉजिटिव आयन है. सल्फ्यूरिक एसिड में से H पॉजिटिव आयन आ गया कैटाइन, और जिंक आयन आ गया जिंक से. अब मुझे बताएं सॉल्यूशन में जिंक आयन भी और H पॉजिटिव आयन भी है, व्हिच वन विल डिस्चार्ज? जिंक आयन और H पॉजिटिव? कम ऑन. H positive. H positive. Brilliant. So what happens? H positive ions gain electron and discharge from H2 gas. तो यहाँ पे H positive ion electron gain करते हैं और यहाँ पे आपको यहाँ पे colorless gas के आपको bubbles दिखने शुरू हो जाते हैं. So therefore, since electron flow कर रहा है, right? Electron flow कर रहा है, मतलब है कि potential difference है, electron flow कर रहा है, तो voltmeter reads the value of this potential difference. Let's say this value, this EMF, is let's say 1.16 volts. So basically मेरे पास एक इलेक्ट्रोड कॉपर का है, एक इलेक्ट्रोड जिंक है. अच्छा, लेट्स से फॉर एग्जांपल जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड जो है, इसकी वैल्यू जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वैल्यू, इट इज 1.16 वोल्ट्स. ठीक, स्टे वेरी फोकस्ड यार प्लीज. यहां पे नो आयन. नाउ एवरीवन प्लीज स्टे फोकस्ड, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं जिंक को रिप्लेस कर दूं विद मैग्नीशियम, अगर मैं मैग्नीशियम यूज कर लूं इंस्टेड ऑफ जिंक, राइट? इफ आई यूज मैग्नीशियम इंस्टेड ऑफ जिंक, तो मैं यहां पे Mg यूज कर लूं इंस्टेड ऑफ जिंक, तो Mg इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, यानी कि यहां पे डिस्टेंस इंक्रीज कर गया. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना यहां पे डिस्टेंस ज्यादा होगा बिटवीन द टू मेटल्स चोजन, रिमेंबर, उतना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वैल्यू, वोल्टमीटर वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी. सो इसका E वैल्यू विल बी मोर देन 1.16 वोल्ट्स.
और अगर लेट्स फॉर एग्जांपल मैं जिंक ना यूज करूं, मैं यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे टिन यूज कर लूं, इफ आई यूज टिन इंस्टेड ऑफ जिंक, तो टिन एंड कॉपर की वैल्यू E विल बी लेस देन 1.16 वोल्ट्स। जितना डिस्टेंस इंक्रीज करता रहेगा इन द रिएक्टिविटी सीरीज, उतना पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू विल बी ग्रेटर। और अगर मैं लेट्स से यहां भी कॉपर ले लूं और यहां भी कॉपर ले लूं, तो फिर E वैल्यू विल टर्न आउट टू बी 0 बिकॉज नो पोटेंशियल डिफरेंस विल देयर। So I repeat the process. Earlier on the anode, Sir, I if we had take zinc. copper Zinc on starts both giving zinc ends, ions. They oxidize. And I'll rewind. sir, if we take copper on both ends, then electron transfer is still taking place, no? No, no, no. अगर आपने कॉपर ले ली दो तो फिर तो जीरो वोल्टेज हो जाएगी, फिर तो पोटेंशियल डिफरेंस ही कोई नहीं तो है। कोई डिस्चार्ज नहीं होगा? नो। ओके। सर जी बच्चा। सर ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं? वो आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो फिर देखे ना, जिंक ने जिंक आयन दिया तो इलेक्ट्रॉन लूज किया ना। जब जिंक देगा Zn2 प्लस, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन गए वायर में, वायर के ऊपर आगे दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? डेरिवेटिव कैटायन करेगा। सॉल्यूशन में दो कैटायंस हैं, एक H पॉजिटिव है, एक जिंक आयन है, और H पॉजिटिव नीचे होता है, तो फिर H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो सर्किट कंप्लीट हो गया। अच्छा सही। सर सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव होता है? सर्किट के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो में नेगेटिव टू पॉजिटिव ना, इट्स आल्सो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो सर यहाँ पे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा नहीं, अब मैं दोबारा बताता हूँ, अभी जिंक जो है ऑब्जर्व वो, करो। हाँ बोलो। सर ये जिंक जो है एनोड पॉजिटिव होता है, और आपने एरो देखे इलेक्ट्रॉन के ऊपर की तरफ बनाया है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यहाँ पे एनोड नेगेटिव होता है। एनोड इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। Okay, so the anode is the negative terminal in the electrochemical cell, and the cathode is a positive terminal. It's again from negative to positive. Okay. सर दोबारा एक दफा पोटेंशियल रिपीट डिफरेंस करेंगे? है इलेक्ट्रॉन फ्लो कर, तो वोल्ट मीटर कह रहे हैं मौसम। मैंने कहा सर दोबारा आप रिपीट करेंगे एक दफा ये जो आपने बोला है? Yeah. So basically, anode is the negative electrode in the electrochemical cell. It was the positive electrode in electrolytic cell. जो भी तक हमने पढ़ा electrolytic cell, उसमें anode positive होता है, fact है। लेकिन electrochemical cell में anode is negative और cathode is positive. Okay, and this is based on electron direction. सर अगर कैथोड नेगेटिव पॉजिटिव है तो उसमें हाइड्रोजन क्यों अट्रैक्ट हो रहा है? अच्छा नहीं, एक बात याद रखना है, ये बेसिकली ये इन टर्म्स ऑफ ये नहीं कि इट इज एक्चुअली you can say it is actually, it has a positive charge or it's actually positive by nature. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो आपके पास बैटरी थी ना, बैटरी ने एक को बना दिया पॉजिटिव, बना दिया नेगेटिव। यहाँ तो ये खुद एक बैटरी है, तो मैंने इसको इसलिए बोला पॉजिटिव टर्मिनल जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस पे एक्चुअल चार्ज पॉजिटिव नहीं है। ओके, लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सर जी सर मुझे ये बता दें कि कैथोड पे हाइड्रोजन क्यों आया, समझ नहीं आ रही सर ये। क्योंकि अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होना है ना, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन होनी है, तो इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? कोई आयन ही गेन करेगा। सॉल्यूशन में आयंस कौन कौन से पड़े हैं? एक तो जिंक आयन है, मैं आपसे कैटायन की बात कर रहा हूँ, एक तो जिंक आयन है, और फिर दूसरा फ्रॉम एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इट्स H पॉजिटिव आयन। अब H पॉजिटिव आयन नीचे होता है रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक से, तो H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके डिस्चार्ज कर देगा। इलेक्ट्रॉन जो गेन होना है वो तो कैटायन ने गेन करना है ना। तो आप देखेंगे सॉल्यूशन में कैटायंस कौन से हैं, तो सॉल्यूशन में कैटायंस H पॉजिटिव और जिंक आयन है, तो H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और डिस्चार्ज कर जाएंगे। फिर सर एनोड पे एनायन क्यों नहीं आएगा? नहीं, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल नहीं है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो
एनोड पे हमेशा मेटल होता है और वो मोर रिएक्टिव मेटल होता है, ये मैंने पढ़ाया स्टार्ट में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे देयर इज अ मोर रिएक्टिव मेटल, वो ऑक्सीडाइज करेगा। व्हाई वुड एनाइन कम इफ अ मोर रिएक्टिव मेटल वांट्स टू ऑक्सीडाइज? द जिंक विल फॉर्म आयन रादर। Okay, thank you, sir. Reads the value of this potential difference. Let's say this value, this EMF is, let's say, 1.16 volts. सर यहाँ पे तो सर कैथोड पे H पॉजिटिव आयन पे क्यों वो करे डिस्चार्ज? कैथोड तो पॉजिटिव नहीं So है। basically, मेरे पास एक इलेक्ट्रोड मेरा बच्चा, I explain it again, guys. Listen my words, please, very carefully. मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलूंगा, please. ठीक है? You have to understand my words now. इलेक्ट्रोलिटिक सेल को जेन से निकाल दें भाई, वो खत्म हो गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल। This is electrochemical cell now. यहाँ पे the more reactive metal is the anode and the less reactive metal is the cathode. यहाँ मैंने एग्जांपल दी है जिंक और कॉपर की, राइट? तो जिंक विल बी द एनोड और कॉपर विल बी द कैथोड, क्योंकि रिमेंबर मोर रिएक्टिव मेटल विल बी द एनोड। एनोड इज एन इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होनी है, इसलिए जिंक जिंक आयन दे रहा है, इट्स ऑक्सीडेशन। नाउ सर अगर एनोड पे हम लेस रिएक्टिव मेटल एक सेकंड मेरी बात समझिए, एक सेकंड प्लीज। So basically, anode is an electrode where oxidation occurs. Our cathode is an electrode where reduction occurs. Now, इनके ऊपर as such वो वाले charges नहीं होते जिस तरह के charges electrolytic cell में आप पढ़ के आ रहे हैं, anode positive होता है, cathode negative होता है। No, यहाँ पे ऐसे नहीं होता। यहाँ पे you're talking about the terminal, क्योंकि आप तो ये खुद बैटरी पढ़ रहे हैं। You're learning the battery itself. So यहाँ पे आपको फिजिक्स से पता है इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे हैं, तो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन फ्लो जिंक विल बी कॉल्ड एज अ नेगेटिव टर्मिनल एंड द कैथोड विल बी कॉल्ड एज अ पॉजिटिव टर्मिनल। और एज अ कंक्लूजन आई कैन से यहाँ पे एनोड इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड और cathode is a positive electrode, but it does not mean that the cathode has a positive charge. We have just actually defined it as a positive terminal. Why? Because electron यहाँ पे sync कर रहे हैं। अब यहाँ पे H positive ion से आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन आगे गेन कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कैथोड पे चार्ज पॉजिटिव आया हुआ, ऐसा नहीं है। It is just called as a positive terminal due to movement of electrons. I hope I made it clear. मतलब कि सर चार्ज सेम रहेगा, एनोड पे पॉजिटिव रहेगा और कैथोड पे नेगेटिव रहेगा, लेकिन टर्मिनल्स में टर्मिनल चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे हम यहाँ याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमेशा टर्मिनल्स की बातें करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम चार्ज की बातें करते हैं। ओके सर, सही है, थैंक यू। कॉपर का एक इलेक्ट्रोड जिंक है। अच्छा, लेट्स से फॉर एग्जांपल जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड जो है, इसकी वैल्यू जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वैल्यू, इट इज 1.16 वोल्ट्स। ठीक, स्टे वेरी फोकस्ड यार प्लीज। यहां पे नो आयन। नाउ एवरीवन प्लीज स्टे फोकस्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं जिंक को रिप्लेस कर दूं विद मैग्नीशियम, अगर मैं मैग्नीशियम यूज कर लूं इंस्टेड ऑफ जिंक, राइट? इफ आई यूज मैग्नीशियम इंस्टेड ऑफ जिंक, तो मैं यहां पे Mg यूज कर लूं इंस्टेड ऑफ जिंक, तो Mg इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, यानी कि यहां पे डिस्टेंस इंक्रीज कर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना यहां पे डिस्टेंस ज्यादा होगा बिटवीन द टू मेटल्स चोजन, रिमेंबर उतना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वैल्यू, वोल्ट मीटर वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। सो इसका E वैल्यू विल बी मोर देन 1.16 वोल्ट्स।
और अगर लेट्स फॉर एग्जांपल मैं जिंक ना यूज करूं, मैं यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे टिन यूज कर लूं, इफ आई यूज टिन इंस्टेड ऑफ जिंक, तो टिन एंड कॉपर की वैल्यू E विल बी लेस देन 1.16 वोल्ट्स। जितना डिस्टेंस इंक्रीज करता रहेगा इन द रिएक्टिविटी सीरीज, उतना पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू विल बी ग्रेटर। और अगर मैं लेट्स से यहां भी कॉपर ले लूं और यहां भी कॉपर ले लूं, तो फिर E वैल्यू विल टर्न आउट टू बी 0 बिकॉज नो पोटेंशियल डिफरेंस विल देयर। So I repeat the process. Earlier on the anode, I had zinc. Zinc starts giving zinc ions. They oxidize and they lose electrons in the external circuit. Electrons come here on the copper, आपको electrode. अब जाहिर बात है जो कॉपर मेटल इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, कोई ना कोई कैटायन है जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब सॉल्यूशन में कौन कौन से कैटायंस पड़े हैं? एक जिंक आयन पड़ा है और एक सल्फ्यूरिक एसिड से H पॉजिटिव आयन पड़ा है। तो H पॉजिटिव आयन will attract copper and will gain electrons and will discharge because H positive ion is below in the reactivity series than zinc ions. So therefore H positive ions discharge. Hence electricity is flowing, the voltmeter will show the potential difference. Now if I replace zinc with magnesium, so what happens is the potential difference value will increase. Like if I replace zinc with Sn, I mean tin, so potential difference value will decrease. And if I put actually both the coppers or both the zincs or both the magnesiums on each electrode, the voltage value will turn out to be 0. अच्छा, मजे की बात एक और भी है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं बल्ब, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बल्ब लगा दूं बल्ब, तो इतना तो आप लोगों को पता है फिजिक्स से कि जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी उतना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा, उतना बल्ब विल ग्लो एक्चुअली ब्राइटर। जितनी वोल्टेज कम होगी उतना बल्ब will go dimmer, isn't it? So I can say कि in this case, our bulb glows brightest, or in this case I can say कि bulb will not glow. तो यहां पे तो बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा क्योंकि वोल्ट मीटर की वैल्यू इज 0. Excuse me, sir. Sir. G ion. Sir, for the anode, if we place a less reactive metal and for the cathode a more reactive, will we get a negative value? नहीं, अगर एनोड में आपने लेस रिएक्टिव, देखो इस तरह ना बोलो, आप ये कहो कि जब भी लेस रिएक्टिव लगेगा तो वो हमेशा कैथोड ही होगा ना। एनोड कैथोड डिफाइन करिए लेफ्ट राइट। सर मतलब is it possible we can get a negative reading for the EMF? ये क्वेश्चन नो काइंड ऑफ। अच्छा ओके, सो बेसिकली जो नेगेटिव रीडिंग आ सकती है, लेकिन द सिनेरियो इज वेरी डिफरेंट। वो फिर मुझे एक चीज को बेस वैल्यू नहीं पड़ती है। आई हैव टू टेक वन बेस वैल्यू देन। लेट्स फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं जी, लेट्स से अगर मैं कहता हूं कि मैं आंसर निकाल रहा हूं कॉपर के रिस्पेक्टिव, लेट्स से, और मुझे वो कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करना ही करना है और मुझे कॉपर को बनाना है कैथोड, लेट्स से मुझे कॉपर इज एक्चुअली कैथोड, तो अब अगर मैं जिंक यूज करूंगा तो वोल्ट मीटर वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अगर मैं सिल्वर यूज करूंगा तो वो नेगेटिव हो जाएगी वोल्ट मीटर वैल्यू, क्योंकि सिल्वर के केस में फिर जो कॉपर को एनोड होना चाहिए था, लेकिन आपने कॉपर को कैथोड बना दिया, तो फिर वोल्ट मीटर वैल्यू विल टर्न आउट टू बी नेगेटिव। But we discuss only one phenomenon in O11 and IGCSE, and that is that whenever we are using a less reactive metal, it should always be the cathode, and the more reactive metal should always be the anode. Did that make sense? जी सर, थैंक यू। Okay. No सर problem. जी, इसके पीछे कोई रीजनिंग है? नहीं, ये मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव के पीछे। हाँ जी सर। अच्छा, बेसिकली इसका रीजन बहुत बेसिक है। देखो, अगर मोर रिएक्टिव मेटल है और लेस रिएक्टिव मेटल है, तो विच वन विल प्रेफर टू ऑक्सीडाइज, क्योंकि जो मेटल्स ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं,
तो which one will actually prefer to oxidize, more reactive or less reactive? More reactive. More reactive. अब अगर more reactive oxidize कर रहा है तो आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर से कि ऑक्सीडेशन तो एनोड पे होती है, तो मैं फिर उसको एनोड कह दूंगा. ठीक है सर. Okay, great. Sir, जी मुरसलीन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. बेटा ये कैसी बात कर दी आप? ये जिंक. जी जोया. सर मैंने पूछना था कि ये जो आपने ई लिखा हुआ है उसको बाद में कंपेयर किया विद द ईएमएफ ऑफ द वोल्टमीटर, ये ई जो है ये टिन का अपना है, नहीं मतलब ये ई है वैल्यू इन द वोल्टमीटर ना. नहीं, तो आपने ये जो बीच में क्रोकोडाइल फेस बनाया हुआ है इसका, वो किस चीज का कंपैरिजन है, किन दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन है? यानी कि बेसिकली मैंने ये शो किया है कि मैग्नीशियम और कॉपर, अगर मैं जिंक और कॉपर, लेट्स से जिंक लिया और कॉपर लिया, वैल्यू आई वोल्ट मीटर पे 1.16 वोल्ट्स, लेट्स से. ठीक हो गया? जी सर. तो फिर अगर मैं जिंक को हटा के एनजी लगा दूंगा तो अब वैल्यू इन द वोल्ट मीटर विल बी मोर देन 1.16 वोल्ट्स. ओह ओके इस तरह. अगर ओके, मैंने थैंक यू टिन सर. यूज किया तो वैल्यू विल लेस देन 1.16 वोल्ट्स. ओके सर. जिंक लिखा हुआ है, ये कॉपर लिखा हुआ है. नीचे आए तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है. सर इस अच्छा अब मुझे बताएं. जी सर यस यस प्लीज क्वेश्चन, गो ऑन. फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोर, ये कौन सा एसिड जी था, जी. सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया, तो उसके अंदर जो OH आयंस हैं वो एनोड पे क्यों नहीं जा रहे? ओह, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था, मैं उसको रीस्टेट करता हूं. जब भी एनोड पे आपका मेटल लगा होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, हमेशा जो मेटल है वो ऑक्सीडाइज करना पसंद करेगा. देखो ना, जब एक चीज खुद ऑक्सीडाइज करना चाहती है तो वो अपने ऊपर क्यों करवाए ऑक्सीडेशन, isn't it? तो रिमेंबर, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अगर एनोड मेटल का बना हुआ है तो वो खुद ऑक्सीडाइज करेगा. इट विल नॉट अलाउ एनी एनाइन टू गेट ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज वो तो खुद मेटल का बना हुआ है एंड द मेटल्स टेंड टू ऑक्सीडाइज. ओके. यस सर. सर ये आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं, अच्छा ये यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग. जी जैनब. सर ये जो आपने अभी बोला है कि एनोड ऑक्सीडाइज करता है, ये आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे थे या इस वाले की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की. एंड सेम गोज फॉर, देखो जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, वहां भी तो आप जो मेटल एनोड के लेते हैं वहां भी ऑक्सीडाइज ही करता है. ऑक्सीडेशन होनी एनोड पे ही है. डू आई मेक सेंस? सर सॉरी ये नहीं समझ आया, आप दोबारा बता देंगे? ओके. सो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मोर रिएक्टिव मेटल ऑक्सीडाइज करेगा और वो एनोड होगा. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं या अगर आपने कोई जो मेटल यूज किया है एनोड के ऊपर, तो वो तब भी ऑक्सीडाइज करेगा, तब भी एनायन उसमें डिस्चार्ज नहीं करेगा, तब भी वो ऑक्सीडाइज ही करेगा. जो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल्स पढ़ी थी, फिर रिमेंबर यस्टरडे एग्जांपल्स में, कि मैंने एनोड पे मेटल लिया था तो मेटल ऑक्सीडाइज हुआ था और मेटल डिसॉल्व होकर आयन बना था. वहां भी एनाइन डिस्चार्ज नहीं हुआ था. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी एनाइन डिस्चार्ज नहीं होता, एनोड ही डिसॉल्व करता है. और सर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स वाली एग्जांपल है उस पे भी ये अप्लाई होता है कि एनोड ऑक्सीडाइज करेगा? ओके सर. क्वेश्चन है, मेरी बात बहुत गौर सुनिएगा प्लीज, ठीक है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ठीक. अच्छा जी, मेरे पास सपोज करते हैं ये रिएक्टिविटी सीरीज आपकी, ठीक है? तो मेरे पास सपोज करते हैं कि मेरे पास लेट्स से आई हैव कैल्शियम, I have magnesium, I have let's say zinc, let's say I have let's say silver. ये चार मेटल्स हैं मेरे पास, let's say.
ठीक है, 4 metals हैं. Listen please very carefully. जी अमार, हमारे पास तो सोल्यूशन में कॉपर आयंस ही नहीं है बेटा. इस सोल्यूशन में तो कॉपर आयंस है ही नहीं, तो कॉपर आयन कैसे डिस्चार्ज करेंगे? ओके आयशा, आई लुक इनटू इट. ओके, नो प्रॉब्लम. चलिए गाइस, सपोज के मेरे पास 4 मेटल्स हैं, एक ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और सिल्वर. ठीक है, तो वेरी अटेंटिव प्लीज. मैं कहता हूं कि मुझे एक्सपेरिमेंट जो है वो डिजाइन कर दें. ठीक है, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट to explain the reactivity of these metals. Design an experiment to explain reactivity of these metals. Okay. Let's start thinking. मुझे असल में improve करना है thinking process. I want to improve the thinking process. तो इसलिए please stay very focused and very attentive. देखिए, idea 1 क्या हो सकता है? What can be the ideas? Idea, idea 1. एक आइडिया ये हो सकता है कि मैं इस तरह करूं, मैं 4 बीकर्स लूं और सब बीकर्स में मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दूं ऑफ सेम कंसंट्रेशन, सेम वॉल्यूम. मेरे बोलने पे गौर करें चीजों पे प्लीज. मेरे 4 बीकर लिए, मैंने सब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया ऑफ सेम कंसंट्रेशन. ठीक, और जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और सिल्वर, मैं इनको ऐड करूं इनटू ईच बीकर, लेकिन सेम मास एंड सेम साइज, ताकि रेट पे इफेक्ट ना पड़ जाए ना. ठीक है, सेम मास और साइज का, सेम मास और साइज का कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और सिल्वर मैं ऐड कर दूं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में. अब आपको पता है कि जब ये मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ, तो आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं. ठीक है, मेटल जब भी रिएक्ट करता है एसिड से, वो आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है. So metal plus acid will always give salt and hydrogen gas. अब मोर, ये मेरे पास कैल्शियम है. ठीक है, ये कैल्शियम है, ये मैग्नीशियम है, ये जिंक है और ये सिल्वर है. आपको पता है कि सिल्वर हाइड्रोजन से नीचे है, तो इसका मतलब है कि सिल्वर तो बिल्कुल नहीं रिएक्ट करेगा. तो यहां तो नो एफरवेसेंस. लेकिन मेरे ख्याल से यहां पे हर जगह आपको एफरवेसेंस दिखेगी, हर जगह दिखेगी, लेकिन सबसे रैपिड एफरवेसेंस यहां पे होगी. Most rapid effervescence. So by seeing the bubbling rate or by seeing the effervescence, I can actually conclude that which one is calcium, which one is magnesium, which one is aluminium, and which one is calcium, which one is magnesium, which one is zinc, and which one is silver. जी तैमूर. अस्सलाम वालेकुम सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आप ये दोबारा समझा सकते हैं? I'll share the recording now. फिर वो जरा टाइम खत्म हो जाएगा. ओके सर. एक्सक्यूज मी सर. बच्चा, सर ये कैल्शियम जब हमने डाला HCl में, तो उसमें क्यों मोस्ट रैपिड एफरवेसेंस हो रही है? क्योंकि जो कैल्शियम इज मोस्ट रिएक्टिव अमंग दीज ना. सर लेकिन जब हम नीचे जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के, तब ज्यादा नहीं इंक्रीज होती रिएक्टिविटी? माशाल्लाह. वैसे मैंने आई थिंक 100 टाइम्स बोला होगा कि डाउन द रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, इजंट इट? ओके सर, सॉरी. नो प्रॉब्लम. सर
जी इस एक्सपेरिमेंट को करने के हम टेम्परेचर वाला चीज कर सकते हैं कि अगर हम इनिशियल टेम्परेचर ले लें उसके बाद फाइनल टेम्परेचर लें क्योंकि हीट भी तो रिलीज होगी। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आप इस तरह करेंगे, थर्मोमीटर रख दें हर HCl में, फिर बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सिल्वर डाल दें, और फिर आप जो टेम्परेचर जो चेंज नोट कर लें, तो हाईएस्ट टेम्परेचर चेंज आएगा कैल्शियम के तो साथ। सबसे रिएक्टिव होगा। ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली करेक्ट। Sir, we कौन से metals are reactive Can we also check the mass change? जो कौन कौन से मेटल्स अनरिएक्टिव होते हैं, जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे वो अनरिएक्टिव है। और मेरा बच्चा एक आपने एक सवाल किया किसी ने कि आई मीन वी कैन टेक द मास चेंज, हाउ, वो मुझे समझ नहीं आया, वो कैसे? So we can measure the mass before the reaction starts and then after some नहीं time, नो, and we can compare all of the masses. नहीं, यहाँ मास चेंज नहीं आ सकता। फिर यहाँ पे हम But sir, लोग the hydrogen हाइड्रोजन gas is escaping from the liquid. नहीं वो बात ठीक है, लेकिन बाद में कैल्शियम आयन खुद भी तो बन रहा है ना, मैग्नीशियम आयन भी तो बन रहा है, अंदर जिंक आयन भी तो आ रहा है। मास लॉस तो हर एक में हो रहा है, लेकिन मास गेन भी तो हो रहा है सब में। तो आप मास लॉस तो कंपेयर gain नहीं कर कैसे हो पाएंगे, रहा है? क्योंकि आप उसमें कैल्शियम नहीं डाल रहे। हाइड्रोक्लोरिक का मास इंक्रीज तो कर रहा है, आप उसमें कैल्शियम भी तो डाल रहे हैं। लेकिन sir, obviously we will like measure the both of the masses, right? Of the HCl and calcium as well. यानी कि आप कह रहे हैं कि आप इनिशियल मास ले लें कैल्शियम का, उसको मेजर कर लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मास ले लें, फिर उनका मास ऐड कर लें, तो ये इनिशियल मास का मिक्सचर होगा। फिर आप उसमें कैल्शियम डाल दें, तो हाइड्रोजन गैस तो मेरे ख्याल से उतनी रेशो में निकलेगी ना, क्योंकि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक सारे आपके +2 चार्ज देते हैं, तो हाइड्रोजन गैस तो सेम मोल्स निकलेंगे। लेकिन sir, with respect to time, अगर हम first करेंगे like we check the readings after 5 seconds, so don't you think that calcium will give the greatest mass loss as compared to the silver? आई एग्री, लेकिन इतनी इतनी जो जल्दी में आप मैथ्स रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, कि अभी तो रिएक्शन चल रहा होगा, Excuse me, इसलिए मैथ्स लॉस इज नॉट गुड टू एक्सप्लेन। ओके सर अगर बीकर हम मास बैलेंस पे रख दें और फिर रिएक्शन करें, जैसे ही रिएक्शन खत्म होगा तो मास चेंज होना बंद हो जाएगा, ये नहीं कर सकता? रखेंगे तो हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर ही, लेकिन यहाँ पे द प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पे मोल्स ऑफ जो गैस प्रोड्यूस आर सेम इन ईच एक्सपेरिमेंट, व्हाई? बिकॉज़ एवरी एलिमेंट विल शो अ चार्ज ऑफ +2। लेकिन sir, if you're talking in this context, तो फिर इतनी जल्दी हम effervescence भी तो नहीं ना observe कर सकते for 5 beakers or 4 beakers. बेटा वो जो 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 आपने सिर्फ खाली एफर्वेसेंस देखनी है, आपने कौन सी गैस कलेक्ट करनी है? अगर आपने गैस कलेक्ट करनी है, फिर आप अपरेटस बनाएंगे गैस कलेक्ट करने वाला, तो जो गैस तो कलेक्ट हो ही जाएगी, अगर आप उसको गैस सेंसर लगाएंगे वो तो कलेक्ट हो जाएगी। यहाँ तो भी आप खाली एफरेसेंस देख रहे हैं। मैथ्स का मसला आएगा, फिर आपको इन उसके पीछे असल में देयर इज अ कॉन्स्पिकुअस थिंग ना, जो एक चीज आप मिस आउट कर रहे हैं, फिर आपको हर जो मेटल के मोल सेम लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने एक फैक्टर की वेरिएशन देखी तो बाकी फैक्टर्स मस्ट रिमेन कांस्टेंट ना। हम हर फैक्टर चेंज करके तो एक फैक्टर डिटरमिन नहीं कर सकते, हमें सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रखने पड़ेंगे। और अगर सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रखेंगे, सब ने +2 चार्ज देना है, तो मास लॉस तो सबका सेम आ जाएगा, क्योंकि सब में सेम नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ओके राइट, सो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपने हर बीकर में असल में विच मेटल यू एडेड। तो एक तो आइडिया ये है कि आप इसको ये डाइल्यूट एसिड्स में ऐड करें, ठीक है। ऐड करने के बाद आप उसकी एफर्वेसेंस देख लें। लीस्ट एफर्वेसेंस will be the least reactive metal and most effervescent will be the most reactive metal, ठीक है। एक तो ये हो सकता है आइडिया 2। ठीक,
लेट्स सी आइडिया 2 नाउ। आइडिया 2 में क्या करना हमने, ये मेटल और फिर मेटल नाइट्रेट। मेटल इज कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सिल्वर, और हमने इनको ऐड करना है इनटू मेटल नाइट्रेट्स। कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट। सही बात है, हम जो कैल्शियम को कैल्शियम नाइट्रेट तो नहीं ऐड करेंगे, मैग्नीशियम को हम यहाँ नहीं ऐड करेंगे, जिंक को हम उसके सॉल्ट पर नहीं ऐड करेंगे, सिल्वर को हम उसके सॉल्ट पर नहीं ऐड करेंगे, ये तो नहीं हो सकता ना। चलिए ना प्लीज यू हैव टू गिव मी अ शाउट, एवरीवन प्लीज गिव मी अ शाउट। मुझे बताएं जब मैं ऐड करूंगा ये कैल्शियम इन मैग्नीशियम नाइट्रेट, विल रिएक्शन हैपन और नॉट? यस और नो? No. Yes. यस। Yes, sir. Yes. हाँ, क्योंकि जो कैल्शियम वो Yes. तो Fe से ऊपर है, तो मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, तो ये रिएक्शन होगा। आई थिंक ये भी होगा, आई थिंक ये भी होगा। मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। तो अगर कोई ऐसा मेटल हो जिसने सब में रिएक्शन शो कर दिया, फिर वो कैल्शियम होगा। आप बताएं जब मैं मैग्नीशियम ऐड करूंगा कैल्शियम नाइट्रेट में, विल दिस रिएक्शन हैपन? यस और नो? No. 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 And I think it will react with zinc nitrate and silver nitrate. और अगर मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर जिंक ऐड करता हूं इन ये कैल्शियम नाइट्रेट, नो रिएक्शन, मैग्नीशियम नाइट्रेट नो रिएक्शन, वो तो वैसे है ही नहीं, ठीक है, ये वैसे कुछ नहीं है ना, यहां पे हमने कुछ किया ही नहीं है। और जब मैं जिंक ऐड करूंगा सिल्वर नाइट्रेट में, ऑफ कोर्स इट विल डिस्प्ले सिल्वर। तो आई कैन से कि जिंक वो मेटल होगा जो सिर्फ एक ही बीकर में रिएक्शन शो करेगा, मैग्नीशियम वो होगा जो 2 बीकर में रिएक्शन शो करेगा, और कैल्शियम वो होगा जो 3 बीकर्स में रिएक्शन शो करेगा, और सिल्वर विल शो रिएक्शन इन नन ऑफ द बीकर्स। So this is all basically displacement reactions. तो हम बात कर रहे हैं यहां पे displacement reactions की। तो अगर आपने जो मेटल की रिएक्टिविटी अगर एक्सप्लेन करनी है, या आपने एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है, तो आप चाहे एसिड बेस्ड रिएक्शन कर दें या आप चाहे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर दें। जी अली, यू हैव अ क्वेश्चन? Yes, sir. My question is that calcium is the most reactive metal, right? So how can magnesium or zinc or silver can displace it? No, they cannot. But sir, आपने टिक लगाया हुआ है यहाँ पे AgNO3 है। Oh, okay. That was my mistake. Sorry. Now idea 3. Everyone please. The third idea. अब थर्ड आइडिया क्या है कि आप इस तरह करें कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना दें, राइट? लेट्स मेक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जी हारिस, आइडिया 2 में ऑब्जर्वेशन विल बी ब्लैक सॉलिड्स विल बी एक्चुअली प्रोड्यूस्ड। यहां जहां जहां आपने टिक लगाया ना, वहां वहां ब्लैक सॉलिड बनेगा। नाउ जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है गाइस, एवरीवन, जो इसमें आपने करना क्या है, एक आपने सिल्वर ले लेना है एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है? ये डॉट का मतलब है यहां पे हमने कोई रिएक्शन नहीं करना। अब जारी बात है, कैल्शियम तो नहीं ऐड करेंगे ना कैल्शियम नाइट्रेट में, क्या होना, कुछ भी नहीं होना। ओके,
Okay, now I'm in idea 3 guys. आइडिया 3 में आपने करना क्या, आपने एक इलेक्ट्रोड फिक्स कर दिया सिल्वर वाला। अब यहां पे आप लगाएंगे कैल्शियम, फिर आप नीड करेंगे वोल्टमीटर रीडिंग, फिर आप यहां लगाएंगे मैग्नीशियम, फिर आप रीड करेंगे वोल्टमीटर रीडिंग, फिर आप लगाएंगे यहां पे जिंक, और फिर आप रीड करेंगे वोल्टमीटर रीडिंग। तो आई थिंक दैट के कैल्शियम, सिल्वर, magnesium, silver, zinc, silver. So this will have the highest voltage. This will have the highest voltage, and this will have the least voltage. तो आप जो मेटल्स की रिएक्टिविटी इस तरह ही बता सकते हैं। आइडिया 1 की ऑब्जर्वेशन एफर्वेसेंस है। आइडिया जो 2 की ऑब्जर्वेशन जो है ब्लैक सॉलिड फॉर्म्स, और जो आइडिया 3 है इसकी ऑब्जर्वेशन इज वैल्यू ऑन द वोल्टमीटर। जी मोइस सर ये जो आइडिया 3 था सर इसमें सिल्वर की आपने रिएक्टिविटी कैसे चेक की, मतलब बाकी तीनों की तो करती है। I agree, and I was expecting this question, by the way, and it's a bravo question. अगर हमें आपसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनवाना होगा तो फिर हम आपको बता देंगे कि एक आप रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, लेट्स से सिल्वर। तो इसलिए मैंने आपको आई थिंक स्टार्ट बताया कि मैंने सिल्वर को एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किया, तो इट विल मेंशन द क्वेश्चन। जी सर। ओके जी, जो आइडिया 3 है बेटा, आइडिया 3 इज कि यहाँ पे यू टेक सिल्वर एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। सपोज करें यहाँ पे सिल्वर इज नॉट इन द लीग, ठीक है, और हमने सिल्वर आपको एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड दे दिया। अब आप सिल्वर से पहले कैल्शियम कनेक्ट करेंगे, यू विल चेक द वोल्टमीटर वैल्यू। फिर सिल्वर से आप मैग्नीशियम कनेक्ट करेंगे, यू रीड द वोल्टमीटर वैल्यू। फिर सिल्वर से आप कनेक्ट करेंगे जिंक, एंड देन यू विल नोट द वोल्टमीटर वैल्यू। So I think more the value in the voltmeter, more reactive the metal will be. G Ashab, basically it is what I was telling earlier as well. Less reactive metal is always the cathode, ठीक है? तो less reactive metal जो हमेशा वो like हमेशा अब cathode क्यों होता है? एक second please. जो less reactive metal है वो हमेशा cathode क्यों होता है? क्योंकि उस पर रिडक्शन होनी होती है। मोर रिएक्टिव मेटल इज ऑलवेज द एनोड, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होनी है। तो अगर ये दो मेटल्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उस पर ऑक्सीडेशन होगी ना, तो फिर अगर उस पर ऑक्सीजन हो गई है फिर वो दूसरे वाले पे रिडक्शन हैज टू हैपन, क्योंकि रिडॉक्स नीड्स टू बी कंप्लीटेड। सर जितना रिएक्टिविटी सीरीज में डिस्टेंस ज्यादा होता है उतनी ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा आती है। एग्जैक्टली। Are you clear, guys? So guys, this was the idea of electrochemical cell, which I expected that you should know it. अच्छा, अब हम ये जो है कल क्या करेंगे, कल मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। So basically, guys, this was electrolysis, right? I'll share a worksheet with you of electrolysis.